Hello friends, welcome to Dream Civil Services. Today's topic is very important for all UPSC and state PCS exam for PT, mains and interview as well. So आज का टॉपिक जो है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो UPSC का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या स्टेट PCS के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए भी. जो टुडेज़ टॉपिक है वो अभी का बहुत ही रिसेंट टॉपिक है, Lakshadweep issue, and I will discuss not only the issue but also all about Lakshadweep. What is the history of Lakshadweep? What is the administration of Lakshadweep? What is the constitution status of Lakshadweep along with its geographical part also. So please concentrate and enjoy with today's topic. Now come to all about Lakshadweep. Lakshadweep is a union territory of India and it has 36 islands, and its location on the map is on Arabian Sea on the western part side of India, and its formation is on 1st November 1956. लक्षद्वीप इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर 36 आइलैंड्स हैं. ये मैप के ऊपर लोकेशन जो है अरेबियन सी में है जो कि वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, और लक्षद्वीप जो है वो फॉर्मेशन हुआ है, इसका बना है ये as a union territory on 1st November 1956. Its capital is Kavarti and area of Lakshadweep is 32.62 km square, and here is administrator name is Praful Khoda Patel, and population of Lakshadweep is around 64,473, and largest city of Lakshadweep is Androd. And it now come to symbols of Lakshadweep. Animal symbol of Lakshadweep is butterfly, fish. Tree is bread, fruit. Bird is brown nodi, and language is Malayalam. Now see the map of Lakshadweep. Lakshadweep North Island is largest island is Ammandivi Island, and some of the important island of Lakshadweep are Kavarti, which is the capital of Lakshadweep as well, and on the northern part there is Bitra Island and Kilton Island also. There is one of the important bird sanctuary also here on Pitti Island. Now come to, there is a 9-degree channel which separate Kavarti Island and Minico Island, which is very important for UPSC as well as all state PCS exam. And now come to 8-degree channel. 8-degree channel is between Minico Island and Maldives, and Minico Island is a controversy between India and Maldives. सो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि 9-डिग्री चैनल किस किस आइलैंड को सेपरेट करता है, कवरती आइलैंड और मिनिकोय आइलैंड को, और 8-डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, मिनिकोय आइलैंड एंड मालदीव्स को. और मिनिकोय आइलैंड जो है वो एक कंट्रोवर्सी है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में. टू रिलीजन पार्ट ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी. लक्षद्वीप मोस्टली have migrants from the Malabar coast of southwestern part of India, and ethnically they are similar to the Kerala's Malayali people, and more than 93% of Lakshadweep is Muslim, and therefore there is a majority of Muslims and major part is of Sunni sect. तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटी पीपल है 96%, और इसमें मोर देन 93% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते हैं. एंड दीज लक्षद्वीप मोस्टली पीपल जो है वो कहाँ से माइग्रेट होके आए हैं, मालाबार कोस्ट ऑफ साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि सिमिलर हैं टू केरला के मलयाली पीपल की तरह. दैट्स वाई देयर मेजर लैंग्वेज इज मलयालम. Now come to history part of Lakshadweep. In ancient time, there are so many references which suggested that there was a control of island by the Cheras in Sangam Patripattu, and it was suggested that there are local traditions which were the attributes of the first settlement on these islands of Cheraman Perumal, who was the last Chera king of Kerala. Ancient history में evidence ये पता चलता है यहाँ पे चेरास का कंट्रोल था इस एरिया पे, और जो आखिरी किंग था दैट वाज द चेरा किंग ऑफ केरला जिसका नाम था चेरामन पेरुमल, वो भी यहाँ पे कंट्रोल करता था, रूल करता था, एंड ही वाज हैज़ द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम.
एंड एज पर द एविडेंसेस इस्लाम जो है लक्षद्वीप पे आया था बाय द रूलर ऑफ उबैदुल्ला इन 661 सेंचुरी एंड हिज ग्रेव इज आल्सो लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ एंड्रोड विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ लक्षद्वीप. नाउ कम टू मेडिवल पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप. ड्यूरिंग 11th century there was a ruler whose name was late Cholas and Cholas conquered the part of Kerala. So 11th century में क्या हुआ था कि यहाँ पे चोलास का कंट्रोल था और उन्होंने केरला के पार्ट को जीत लिया था एंड दे कम अंडर द किंगडम ऑफ कन्नौर. सो ये पार्ट जो है लक्षद्वीप के किंगडम ऑफ कन्नौर के अंडर आ गए थे. एंड ड्यू टू दिस आइलैंड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रोल ऑफ इंडियन एशियन ट्रेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड as its location is on the trade route connected with the middle east part of Malabar coast, Ceylon as well as the Southeast Asia. So due to this there was a control of so many kingdoms in the medieval period. Now come to modern period. In 6th century Portuguese ruled the seas of Malabar coast and they come to the south part of Ceylon also. And even in 1498 Vasco da Gama arrived at Kochigate district during the age of discovery. So this history is very important for role of Portuguese in Lakshadweep. And the island also mentioned the great details of Arab travelers like Ibn Battuta also came there. And even on Amin Devi group of island there was a ruler Tipu Sultan in 1787 who came there. And also this part was under the British control after the Third Anglo-Mysore War, who were attached to the south part of this island, and British took the administration of these islands, non-payment areas of these islands, and even these islands were attached to the Malabar districts and even Madras presidency during the British period. And after that later in period they were come under the Kochigate Taluk also. Now after independent India on 1st November 1956 there was a reorganization of the Indian state and Lakshadweep Island was separated from the Malabar district से अलग हो गया और एक ये अलग यूनियन टेरिटरी बन गया for the administration purposes. And the new territory was called as Laccadive, Minicoy and Aminadivi Island. Before its name was adopted on 1st November 1973 को लक्षद्वीप नाम दिया गया. Now come to Constitution of Lakshadweep. As union territories are mentioned under Article 1 of the Constitution, and there are three categories of union territory. Number 1, those territories of the state. Number 2, union territories, and number 3, territories that are acquired by the government of India at any time. सो आर्टिकल 1 जो है वो यूनियन टेरिटरी को मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उस आर्टिकल के अंदर 3 कैटेगरीज दी गई हैं. इंडिया जो है वो 3 तरह की टेरिटरीज कंप्राइज करता है. एक वो टेरिटरीज जो स्टेट के पास है, एक यूनियन टेरिटरीज हैं, और एक वो टेरिटरीज जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी किसी भी टाइम पे एक्वायर कर सकता है. एंड इट इज़ मैंशनड इन द पार्ट 3 एंड आर्टिकल्स फॉर द यूनियन टेरिटरीज आर 239 to 241. Now what is union territory? Union territory are those areas which are under the direct control of administration of central government. So union territory वो areas होते हैं जो कि direct control में होते हैं किसके, central और union government के. And mainly these areas are administered by the president only. Now come to how was the creation of union territory. Union territory कैसे create हुए? तो ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ था, देवर शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन 1874 विच वर लेटर नेम्ड एज चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. तो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता था यूनियन टेरिटरीज को 1874 तक, उसके बाद इनको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहा जाता था. आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद क्या हुआ, देवर द प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ पार्ट सी एंड पार्ट डी. एंड 1956 एज आई सेड इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरी by which act 7th Constitutional Amendment Act 1956 and State Reorganization Act 1956. So ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद यूनियन टेरिटरीज को कौन सी कैटेगरी में रखा गया, पार्ट सी और पार्ट डी में, और कौन सी एक्ट से, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1956. Now come to administration of the Lakshadweep. As I said, administrator of the union territory is a agent of the president, like it is under the direct control of president, not by the head of any state like governor.
सो यूनियन टेरिटरीज में जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो मैप में वेस्टर्न साइड में है, उन वहाँ पर उन यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, लाइक इन चंडीगढ़ एंड दमन एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, and even in Lakshadweep there is an administrator who control the union territory part. And in eastern part of union territory, like in case of Delhi, Puducherry, Andaman Nicobar and Jammu and Kashmir, the head is known as lieutenant governor. So जो मैप के वेस्टर्न पार्ट में है यूनियन टेरिटरी, उसको एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है, और जो ईस्टर्न पार्ट में है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कंट्रोल करता है. जैसे कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है और लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर होता है. नाउ जो पार्लियामेंट है, इट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ 3 लिस्ट. देर आर 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. सो पार्लियामेंट जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर यूनियन टेरिटरी के अंदर लॉ बना सकता है, इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट के ऊपर भी बना सकता है. नाउ कम टू ज्यूरिडिक्शन ऑफ द लक्षद्वीप. लक्षद्वीप इज कम अंडर द केरला हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन. तो लक्षद्वीप की और केरला हाई कोर्ट की एक ही ज्यूरिडिक्शन है. नाउ कम टू रिसेंट इश्यूज ऑफ द लक्षद्वीप. लक्षद्वीप में क्या रिसेंटली हो रहा है जो ये न्यूज में है. देर आर मेनली 4 इश्यूज. तो 4 इश्यूज चल रहे हैं. नंबर 1 इशू इज द ऑर्डर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, नेम इज प्रफुल्ल पटेल. सो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप ने क्या ऑर्डर किया है. ही ऑर्डर टू बैन द स्लोटर्स ऑफ काउ, काफ एंड इवन बुल एंड बफेलो. तो उन्होंने स्लोटरिंग ऑफ काउ पे बैन कर दिया है, and without giving any certificate from a competent authority. And it also prohibit the sale, transport or storage of beef and beef product. तो कोई भी ना सेल कर सकता है बीफ प्रोडक्ट्स को, ना ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ना ही स्टोर कर सकता है. और अगर ऐसा कोई करेगा, देर इज अ पेनल्टी ऑफ एंड इवन अ जेल टर्म ऑफ 1 year एंड फाइन इज ऑफ 10,000. तो उसको 1 साल की जेल हो सकती है और 10,000 रुपये का फाइन हो सकता है. Then what was the views of residents? Residents started protested there. तो resident ने वहाँ protest start कर दिया है, and they are against this rule because they are thinking that this rule is the direct infringement of their culture and eating habits. तो वहाँ के जो resident है वो protest इसलिए कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि उनके cultural और जो खाने की habits हैं उसको ये infringe कर रहा है, उसको हनन कर रहा है ये. Now residents are not agree with this rule. That's why the protest is going on in Lakshadweep. What are the administrator proposal? Administrator is saying that he brought this rule for the safety and well-being of the residents only, and even he want to promote the island for the tourist destination as par with the Maldives. तो administrator का कहना है कि वो मालदीव्स की तरह लक्षद्वीप को भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं. नाउ सेकेंड इशू इज ऑफ लैंड एक्विजिशन पावर्स. एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रूल बनाया है विच इज रिलेटेड विद द लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट. हियर इज देर आर सम चेंजेस इन द लैंड एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड विच इज यूज्ड, एंड दिस लैंड कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन्स ऑन द आइलैंड. सो ड्यू टू दिस प्रपोजल देर इज अ protest by the residents. They are saying that this proposal is without their consultation, or even they didn't consult with the local authorities. The all about proposal is the proposal is about the planning areas and constitution of the planning and development authorities for preparing a land use. Even they can use for them the large projects also. So administration एक रूल लेके आई है जिसमें लैंड एक्विजिशन के ऊपर बेस्ड है. इसमें क्या है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है जो कि लक्षद्वीप के टाउन्स को यूज़ करेगा फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस. तो रेजिडेंट का ये कहना है कि ये जो इससे जो है वहाँ की इकोलॉजी डिस्टेबलाइज हो जाएगी, वहाँ की इकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ेगा अगर बहुत सारे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे और टूरिस्ट प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो जाएंगे. एंड वट अबाउट द पावर्स, द एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दी गई है कि वो स्मॉल जो वहाँ की लैंड होल्डिंग्स है रेजिडेंट्स की, उनको रिमूव कर सकता है फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस. Now third issue is of two-child policy. So there is a draft Panchayat Regulation 2021 under which the administration aim is to bar the people with more than 2 children from becoming a member of Gram Panchayat.
सो ड्राफ्ट पंचायत रेगुलेशन 21 एक्ट एक लेके आया है एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे वो क्या कहता है कि अगर किसी के पास 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है तो वो ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता है आफ्टर पासिंग दिस ड्राफ्ट रेगुलेशन एक्ट। पास पहले से मोर देन 2 चिल्ड्रन है, उनके लिए ये रेगुलेशन एक्ट नहीं है, उनको वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा अगर वो मेंबर है ग्राम पंचायत के। एंड इट कैन बी अप्लाइड ओनली आफ्टर व्हेन द रूल ऑफ दिस रेगुलेशन एक्ट विल कम इनटू फोर्स। सो रेजिडेंट्स ने और लोकल्स ने इसको अपोज किया है और कहा है कि इसके पीछे क्या पर्पस है, इस रूल के पीछे उनको ये समझ नहीं आ रहा है। इवन जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी इस रेगुलेशन ड्राफ्ट को अपोज किया, जिसकी वजह से इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। नाउ फोर्थ इश्यूज ऑफ सर्विंग लिकर टू टूरिस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या डिसाइड किया है, ही विल डिसाइडेड दैट टू अलो द लिकर टू सर्व एट रिजॉर्ट्स ऑन इनहैबिटेड आइलैंड। मीन्स उन आइलैंड्स पे जो बसे हुए आइलैंड्स हैं जहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर लिकर अलो कर दी गई है। बट रिसेंटली क्या है, जहाँ पर इनहैबिटेड आइलैंड है वहाँ पे प्रोहिबिटेड था लिकर, वहाँ पे लिकर नहीं अवेलेबल की जाती थी। बट इट कैन बी सर्व्ड ओनली अनइनहैबिटेड आइलैंड पे, जहाँ पे आइलैंड बसे नहीं हुए थे, लाइक बानग्राम आइलैंड, वहाँ पे लिकर परमिटेड थी। इवन कलेक्टर ने क्लेरिफाई कर दिया कि लिकर जो है वो परमिट की जाएगी ओनली टू दोज रिजॉर्ट्स हु आर फॉर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, नॉट टू द लोकल्स। सो मेन इशू इज दैट कि जो लिकर है वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए अवेलेबल की जाएगी, वहाँ के लोकल्स के लिए नहीं की जाएगी। So locals are protested against this rule also because they said if you are banning the beef then why you are allowing the liquor, कि बीफ को तो आपने बैन कर दिया बट लिकर को आप अलो कर रहे हो। सो दैट्स वाई द लॉट ऑफ प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन इन लक्षद्वीप। सो that's all about today's topic. Hope so you all understood this topic in a good manner. So please friends, if you like this video, comment in a comment section and please keep watching Dream Civil Services. Jai Hind.